Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आ रही है आवाज मेरी? हेलो Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. Good morning, sir. Yes, sir. आ रही है. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे. बच्चे लास्ट टाइम हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे? दैट इज रिलेटेड एम्पलीफायर कवर किया था कुछ. हेलो एवरीवन. Yes, sir. Hello, sir. हेलो. Yes, sir. लास्ट टाइम हमने एवरेज, स्केलिंग और समिंग एम्पलीफायर कवर किया था. ओके. Yes, sir. सो आज स्टार्ट करते हैं. दैट इज द Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक. और पीकिंग का कुछ किया था. पीकिंग एम्पलीफायर. ओके. Sir. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है, sir. ओके ओके बच्चे. Now next topic is starting with that is the instrumentation amplifier. Okay. Please all of you have to maintain your notebook also. Notebook अपने पास रखो बच्चे. कोई भी डेरिवेशन है कुछ भी है उसको साथ में करते रहो ताकि ये मैक्सिमम हमने डेरिवेशन उसकी बोर्ड पे करेंगे. क्लियर? ओके. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो. What is the instrumentation amplifier? Input stage, the board is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Intermediate stage, next one is now output stage. Okay. That is your instrumentation amplifier. Okay. So next one is now indicator and automatic process controller. In this you have to join your indicator and controller. So that is your block diagram. I am audible to all of you. Yes, Hello, sir. hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. Nishikant. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Hello. I am audible to all of you. Yes, Yes, sir. sir. आ रही है आवाज. ये आवाज नहीं आ रही. Okay, okay, okay. Yes, So sir. basically, what is now instrumentation amplifier? In many industrial and consumer application,
the measurement and the control of the physical condition are very important. So measurement of temperature and humidity inside a maybe example of your dairy or meat plant to operate like a necessary adjustment to maintain product quality. So in that you have to much require the some temperature control, including in that some industry level. Okay, so उसके लिए generally a transducer जो हम use करते हैं, that is used to at the measuring site to obtain the required information easily and safely. So transducer क्या होता है बच्चे? Transducer is a device that convert one form of energy into another. For example, strain gauge, when it is subject to pressure or force undergoes change with the resistance. Means किसी भी हम physical level को एक energy से दूसरी energy से change करते हैं, that with the help of your transducer. So means it should be input your physical quantity. ये इनपुट आएगी जो यहां पे इनपुट क्वालिटी आएगी, दैट इज योर ट्रांसमिशन लाइन. ओके बच्चे, ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, सभी क्लियर है सबको? आई हैव टू एलैबोरेट दिस ब्लॉक डायग्राम. सबसे पहले यहां पे ट्रांसड्यूसर आएगा, देन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज यूज्ड टू मेजर द आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसड्यूसर एंड टू कंट्रोल द फिजिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड इट. Means that is the intermediate state is now the measure the output of the input state, that is a transducer, and it should be go with the output state which have to some connectivity, some indicator and the controlling unit in that. So the input stage is composed of a pre-amplifier and some sort of your transducer depending upon the physical quantity to be measured. Means जो इनपुट स्टेज होगी वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसड्यूसर से कुछ मेजरमेंट करेगा, दैट शुड बी आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू द इंटरमीडिएट स्टेज, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर. एंड द आउटपुट स्टेज में यूज डिवाइस सच एज योर मीटर्स, रिकॉर्डर्स, oscilloscope, charts or any magnetic recorder. It should be connected with the output of this stage. So that is the simplified block diagram of your instrumentation transformer. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Okay. So next है हमारा बच्चे instrumentation amplifier using transducer bridge. Means it will be using your differential instrumentation amplifier using a bridge. पीपीटी पे देखो, सबको डायग्राम क्लियर दिख रही है आपको? Yes sir. पहली वाली थी जो डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखो, that is the diagram is now differential instrumentation amplifier using a transducer bridge. देखो पीपीटी पे, we have not need to required to for a diagram. इसकी जो डेरिवेशन होगी, जो भी सिस्टम होगा वो मैं ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ. इसकी डायग्राम सबको दिख रही है बच्चे यहाँ पे? Yes sir. Sir. Okay. So now I have to elaborate this diagram. For that I have to arrange this one. So this figure show in your PPT has a simplified differential instrumentation amplifier using a transducer bridge. Okay, a resistive transducer whose resistance changes as a function of some physical energy is connecting in one arm of the bridge with a small resistor, that is your RT plus minus RT dash. देखो यहाँ पे कुछ रजिस्टर आपकी डायग्राम पे मेंशन है, प्लस माइनस डेल्टा आर. देखो अपनी पीपीटी पे. Yes sir. Yes sir. RT Yes, sir. with your plus minus with your some resistor change in the resistance. So that is the connectivity. RT is known as your resistor of the transducer and delta R is now change in the resistance RT. Means जो आपकी RT है
that is the resistance of transducer है, and delta R है, that is the change in resistor in transducer. पता लगा? एक ब्रिज बना हुआ है आपके यहाँ पे, जहां पे 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, आर ए आर हेलो लाइट चली गई है। सर ही चलेगा। आशीष, हेलो।
मर गया। बच्चे अरे माइक बंद कर। नहीं क्लास में सर नहीं है। सर नहीं है, सर नहीं है। भगवान करे लाइट नहीं है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सच्ची? हेलो। यस सर। यस आ गए सर। हो? चलो यस ठीक है। सर।
पावर कट हो गया था, रुको चलो। यस सर। यस सर। पीपीटी होगी शेयर, देखो। हेलो, यस यस सर। यस सर, यस सर। देखो डायग्राम निकाल लो। चलो, ये भी डायग्राम पे थे बच्चे हम। ओके, तो इस डायग्राम में था कि हमारा डिफरेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग विद ए ट्रांसड्यूसर ब्रिज, वी आर यूजिंग ए 4 रेजिस्टेंस RA, RB, RC with that is a resistive transducer term, that is RT, which changing the resistance RT, that is your delta R. Okay, so now the bridge in the circuit is DC excited but could be AC excited as well, means ये bridge AC और DC दोनों के लिए काम कर सकता है। For a balanced bridge, we have a some reference condition. मान लो अगर ये वाला ब्रिज आपका रेफरेंस फॉर ए बैलेंस्ड होगा, so in that case you have to voltage at that PPT point, that is the VA equal to your VB. VB voltage, it should be equal to VA with the balanced condition. Okay बच्चे, I am audible to all of you? With the balance condition, Yes, sir. that is a VA should be equal to VB. So now how to calculate the voltage according to VA equal to VB? So means VB की वैल्यू क्या होगी? VB should be equal to here VB, it should be equal to with your RB voltage DC, it should be equal to your RB plus RC equal to VA. VA देखो टर्मिनल जो आपका पीपीटी पे आ रहा होगा, RA should be voltage of DC divided by your RA plus RT. Okay, for that condition you should available in moment is that कि अब आपकी जो इसमें रेजिस्टेंस आएगी, मींस VB it should be equal to RB plus RA. तो अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे, नेक्स्ट इट शुड बी वैल्यू नाउ RC डिवाइड बाय RB इक्वल टू RT डिवाइड बाय RA. देखो ये वैल्यू आएगी आपकी. सो these resistance RA, RB and RC, बच्चे I am audible to all of you? यस सर। मींस आपने एक कंडीशन निकाली यहां पे कि विद बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ दिस ब्रिज VB should be VA. So for VB should be calculate the RB VB divided by RB plus RC voltage dividing rule equal to with VA value. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फाइनलाइज ये वैल्यू आएगी आपकी RC divided by RB equal to RT divided by RA. So resistance RA, RB and RC are selected so that they are equal in value to the transition resistance RT at some reference condition. And the reference condition it should be specified, the bridge is just the, अगर मान लो अब यहाँ पे वैल्यू आती है, let the change in the resistance of the transducer delta R, means RT पे आपकी वैल्यू चेंज आ रही है डेल्टा R, तब हमारी कंडीशन क्या होगी? then since RB and RC जो आपकी पीपीटी पे RB और RC है, that is now fixed and voltage VB is now constant. So voltage VA varies as a function of the change in the transducer. Means अब आपने वोल्टेज निकालनी है, अगर चेंज इन द वेदर VA पे वोल्टेज निकालो whenever to change in the transducer resistance. Means अब RT की वैल्यू चेंज होके
RT इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R हो गया आपका मान लो। तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, उस पे R कैलकुलेट हो करो VA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA एट दैट पॉइंट इफ डेल्टा R इज नाउ एडिंग रेजिस्टेंस विद RT? So it should be now voltage dividing rule, RA voltage DC equal to RA plus RT plus delta R। ये देखो पॉइंट पता लगा सबको? पहले देखो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. You have to calculate the voltage at point VA with the change in the resistance, that is the delta R। मींस RT पे डेल्टा R हमने ऐड कर दिया है। तो सिमिलरली VB की वैल्यू क्या आएगी? VB की वैल्यू हमारी वैसे ही रहेगी, that is RB वोल्टेज DC डिवाइड बाय RB प्लस RC। देखो ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर हो गई है सबको? दोबारा मैंने लिखी है, राइट अप की है। चेक इट आउट दिस कंडीशन। हेलो एवरीवन, निशिकांत, आशीष, विकास। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों क्लियर हो गए? विद द इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर में you have to change the value of delta R। okay, so now next step is now to calculate the voltage across the output terminal of the bridge, that is you have to calculate the value of VAB। it should be equal to the value of VA minus VB। means अब VA minus VB करो, देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है। VA, or in that case you have to put up the value RA equal to RB equal to RT should be equal to the value of R equal to your RC। इन सबकी वैल्यू कॉमन मान लो आपकी रेजिस्टर R है, तो मेरे को VAB फाइंड आउट करके दो, VAB की वैल्यू क्या निकलेगी? कैलकुलेट करके बताओ निशिकांत, आशीष, सुप्रिया। हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. You have to put up the value of VA minus VB and all the four resistance should be equal to with the value of R। Jyotishna, Prachi, are you hearing me? डेल्टा R DC upon 2R plus delta R। इसकी जो वैल्यू फाइनलाइज आप फाइंड आउट करोगे, with the all the value should be equal to with value R, then VAB should be equal to delta R, VDC should be equal to here 2 into 2R plus delta R। देखो ये वैल्यू निकली है सबकी? यस सर। Yes, sir. साथ में नेगेटिव आएगा मेरे हिसाब से, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, चेक करो। नेगेटिव साइन आ रहा है? हेलो दुर्गा, Yes, sir. इक्वेशन निकाली है वाली निशिकांत, ज्योतिषना, प्राची। The negative sign should be available minus delta R VDC into divide by 2 into 2R plus delta R आ रहा है ना बच्चे? So negative sign indicates that VA should be less than VB। अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब VA की वैल्यू लेस है VB से ना। So because VA should be less than VB means जो आपकी V because of the increase the value of the delta R means अगर delta R की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए हमारी VA की वैल्यू
VB से कम है. Okay. Yes, sir. So now you have to calculate the gain of the differential amplifier. Gain of the differential amplifier क्या होगा? That is your feedback amplifier. इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका कनेक्टिविटी है, that is जो आपका V नॉट यहां पे निकालोगे, V नॉट इट शुड बी इक्वल टू VAB माइनस RF डिवाइड बाय R1. ओके, सो उसको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा, आई हैव टू राइट दिस वन. That is a V naught, it should be equal to here delta R VDC divided by 2 into 2R plus delta R RF by R1. ये वैल्यू V naught की निकलेगी. So in that case, if you are 2R plus delta R is very small, equal to that should be very approximate equal to the 2R. मान लो डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है, तो इट शुड बी इक्वल टू हियर, eliminate this value. So finalize answer is you should have to calculate by value RF divide by R1 delta R by 4R into voltage DC. ये वैल्यू फाइंड आउट होगी लास्ट पे आपकी. देखो कैलकुलेट हो रही है वैल्यू सबकी. V naught it should be equal to here RF divided by R1 delta R divided by 4R into voltage DC. आशीष, निशिकांत, यस सर. नोट कर लिया सबने? यस सर. So that equation indicate that V naught is directly proportional to the change in the resistance of the delta R of the transducer. Means जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस है. जितनी वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की चेंज होगी, यही हमने चेंज कर रहे थे कि ट्रांसड्यूसर ब्रिज लगाने से अगर हमारी कोई रेजिस्टेंस की वोल्टेज चेंज होती है तो what should be the effect of your output voltage. So output voltage is now directly proportional to the value of the delta R. So whatever the change in the value of the delta R, that is a change in the resistance value of the transducer, it should be totally affect on the output voltage, that is the V naught. So that is your instrumentation amplifier. Clear everyone? यस सर. Yes, sir. आगे चले अब. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बच्चे, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद फ्लोटिंग लोड. V2I कन्वर्टर विद, सर टॉपिक का नाम क्या था, एक बार फिर से बताइएगा. V2I कन्वर्टर विद, हेलो सर. हेलो हेलो सर. हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? जी सर, टॉपिक का नाम बताइएगा सर एक बार फिर से. V2I वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद फ्लोटिंग लोड. Means I have to done the derivation of V2I converter load. Okay. क्लियर है बच्चे? टॉपिक करें शुरू? यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. नो, चेक करो. अब मैं डायग्राम बना रहा हूं पहले. I have draw the op-amp.
डायग्राम साथ में बना लो बच्चे। I naught, that is the output current. बनाओ बच्चे डायग्राम जल्दी। That is a voltage to current converter with floating load. डायग्राम बना लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. All are in group, make the diagram. Then I have to erase this one and draw the derivation for that. How to convert a voltage to current. हो गया sir. बना लिया सबने? प्राची? Yes. Yes, sir. So I have to erase this one. अब ये डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा सारा, डायग्राम साथ में नोट कर लेना। Now this is a voltage to current converter in which your load resistance RL is floating. जो देखो हमने आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, that is now floating, that is not connected with the ground. The input voltage is applied to the non inverting input terminal. पॉजिटिव पे अप्लाई कर रहे हैं V in, चेक करो बच्चे डायग्राम पे। Yes, sir. And Yes, sir. the feedback voltage across R1 drives the inverting input terminal. Means जो R1 drives, जो R1 है they should connect with the inverting terminal. So this circuit is also known as current series negative feedback amplifier. Okay, so according to your Kirchhoff's law, voltage law, you should apply for the input loop. आप यहाँ पे अगर input loop पे apply करते हो, that case you have to given the value KCL at input loop, that V in it should be equal to VID plus VF. देखो जो आपकी इनपुट वोल्टेज है, इट शुड बी इक्वल टू द VF. ये जो आपका टर्मिनल पे ऊपर वाला टर्मिनल था वहां पे VF लिखा हुआ था, VF. सो V in it should be equal to वोल्टेज डिफरेंस प्लस VF होगा जो आपका। sir. और यहाँ पे VID की वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम की है कि वो 0 आ रही है ड्यू टू द नॉट इनपुट ऑफसेट वोल्टेजेस. So in that case V in it should be equal to your VF. Okay, what is the value of V in? V in should be equal to the V in की वैल्यू क्या होगी, VF की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ. V in is equal to VF. VF it should be equal to the V in equal to your R1 I naught. VF की वैल्यू देखो क्या होगी टर्मिनल पे, रेजिस्टेंस R1 और आउटपुट I0 करंट फ्लो हो रहा है उस पे, that is a V in is equal to R1 I naught आ जाएगा. And what Yes, is sir. the value of I naught here? I naught is equal to V in divided by here R1. R1. Okay, this means that in the circuit input voltage V in is should be converting into an output current. Means आपको voltage given होगी, it should be converting, you have to find out the I naught. So means that circuit is using the voltage to current converter with the floating load. Clear हुआ बच्चे ये चीज? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir.
अदर वन? बच्चे वोल्टेज गिवन होगी उससे आप करंट फाइंड आउट कर लोगे? यस सर। क्लियर है बच्चे ये वाला? यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट सेम ही हमारा है डायग्राम, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद ग्राउंडेड लोड। ये था हमारा फ्लोटिंग लोड, मींस अब हम करेंगे ग्राउंडेड लोड के साथ, ठीक है? उसकी भी डायग्राम बनाओ। इसकी डायग्राम बना रहा हूं बच्चे, फिर नोट कर लो। वोल्टेज टू कन्वर्ट करंट कन्वर्टर विद ग्राउंडेड लोड। डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चे सभी इसकी। बच्चे बनाओ डायग्राम इसकी। हो गया सर। हो गया That is a voltage to current converter with your grounded load। सबने बना ली है? यस सर। और अदर वंस? दुर्गा, दीपक, यस सर बना लिए सर। प्राची, ज्योतिष्ना। यस सर बन गई। चलो I have to draw the derivation for that, I have to erase this one, okay? इस डायग्राम को देख के ही बात समझ लगेगी बाकी सबको। I have to draw the voltage that is a V2 at this point, that is a V2, okay? This is a battery connected, that is a VEN, input source। Now see your diagram, applied the Kirchhoff's current equation at node V1। मान लो जो लोड के साथ V1 नोड है उस पे आपकी किर्चॉफ्स लॉ KCL अप्लाई करते हो, इट शुड बी इक्वल टू द I1 प्लस I2 इक्वल टू योर IL। लोड यहाँ पे क्या है? ग्राउंडेड लोड, मींस लोड को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ग्राउंडेड लोड। अब देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू IL हो रहा है अकॉर्डिंग टू KCL से। यस 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 सर।
So what is the value of Yes, sir. I1 here? I1 it should be equal to here V V in by N by I minus R. V in minus V1 divide by R R. प्लस Yes. I2 की वैल्यू क्या आएगी? Sir, V naught माइनस V1 डिवाइड बाय 1 by R इक्वल टू Yes, ईयर IL. IL. Yes, sir. ओके, इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1. V1 इट शुड बी इक्वल टू ईयर V in प्लस V नॉट माइनस ILR डिवाइड बाय 2. देखो V1 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा. सर वो I2 जो है क्या? सर I2 जो हमने कैलकुलेट किया V1 V2 होगा क्या सर? V1 हो. I2 is now V नॉट डिवाइड माइनस बाय V1 डिवाइड बाय R आएगा ना. इसको कैलकुलेशन करके हमारा V1 की वैल्यू ये फाइंड आउट होगी. ओके सर. ओके, सो अब इस केस में क्या है, आपका ओपन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? दैट इज द इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. बताओ. नॉन इन्वर्टिंग. दैट इज योर नॉन इन्वर्टिंग बिकॉज जो कनेक्शन V इन है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. और नॉन इन्वर्टेड का गेन क्या होता है आपका? दैट इज 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 होता है. यस सर. तो यहाँ पे RF और R की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है. R 1 हो है, जाएगा सर. तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. दोनों कट करके 1 Yes, प्लस 1 sir. यस सर. 2 आ जाएगी वैल्यू. यस सर. ओके, सो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्या आएगी? तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी? मान लो V नॉट इज इक्वल टू 2V1 आ जाएगी इन केस Yes. ऑफ योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. यस सर. ठीक है कि नहीं? अगर 2 को इसके साथ V1 की वैल्यू करेंगे तो V1 की वैल्यू सिंपल ये आ जाएगी V इन प्लस V नॉट माइनस ILR. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला. Yes, sir. क्लियर दिस वन? Yes, sir. यस सर. तो अगर यहां पे V नॉट आएगा, सॉरी, तो V नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? V इन इट शुड बी इक्वल टू ILR. आर. और IL की क्या वैल्यू निकलेगी? V इन डिवाइड बाय आर. R. आर. तो यही हमने निकालना था कि अगर हमारे पास V इनपुट वोल्टेज हो, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर IL. नहीं सब कर रहे हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर. वोल्टेज हमें पता हो तो उससे हम क्या निकाल लें? करंट निकाल लें. So that is your voltage to current converter by using your with floating load and the grounded load. देख लो बच्चे, पता लगा सबको यहाँ तक? यस सर. Clear these two topics. That is the instrumentation normally amplifier, that the instrumentation amplifier using a transducer bridge and the V to I converter. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. चलो एक पोल दे रहा हूं, पोल को सोल्व करो. Yes, sir.
हेलो सर। हाँ जी बच्चे, सर क्या होगा पोल का आंसर? पोल का आंसर आप बताओगे? सर कनेक्ट हो गया। सर मैंने तो ये लगाया था सर। बस चुप कर जाओ, बस जितना आंसर दे रही है, बस जब खत्म होगा फिर बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बोल के बीच में नहीं डिस्कशन करनी। अभी खत्म नहीं हुआ सर पोल। अभी बच्चे 3-4 बच्चे पेंडिंग है, जल्दी आंसर दो मेरे को। चलो, दैट इज ऑप्शन बी फॉर दिस वन। ओके सर। चलो नेक्स्ट करो पोल। करो बच्चे जल्दी। गिव द आंसर। इसकी ऑप्शन सी है बच्चे। ओके ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चे। अभी हमने किया है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ओके, वोल्टेज टू करंट। सो इसमें बच्चे हमने किया है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। सिमिलरली है आपका करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में ना यहाँ पे D टू A कन्वर्टर हमने ना DCLD में किए थे।
सेम वही डेरिवेशन इसमें यूज होती है, डायरेक्ट फॉर्म में यूज होते हैं। इसका मैं ना एक छोटा सा एक आधा सा पीडीएफ वाला पेज है, वही आपको भेज दूंगा। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। दैट यू शुड हैव टू कवर ऑलरेडी इन योर D2A कन्वर्टर इन योर DCLD। DCLD में आपने ना A to D और D2A कन्वर्टर किए होंगे, किए थे? कोई याद है आपको? हेलो एवरीवन। तो उस केस में ना आपका D2A कन्वर्टर में ना करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर आ जाता है। तो इसका मैं एक डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दूंगा जिसमें केवल फॉर्मूला ही है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपकी डायग्राम बनी हुई है। दैट इज डायरेक्टली पुट अप योर फॉर्मूला। ओके, तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट डेरिवेशन नहीं है। ओके, सो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। दैट शुड बी शो इन योर पीपीटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। हम दोनों ही अब वन बाय वन करके आज टॉपिक में कवर करेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन इज आई हैव टू डिस्कशन, दैट इज योर इंटीग्रेटर। ओके, अब इंटीग्रेटर क्या होता है? आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटर। Now, integrator. Integrator is a circuit in which output voltage waveform is the integral of the input voltage waveform. Means जो आपकी output waveform आएगी, that should be the integral of the input waveform. It should be known as, the circuit should be known as your integrator or integration amplifier. So such circuit is obtained by using a basic amplifier configuration if the feedback resistance RF is replaced by your capacitor CF. So I have draw the diagram for that. Means इस पे आपका जो feedback resistance होगा, it should be now change with the capacitor value, then the circuit is known as your integration or integration amplifier. Okay, draw the diagram all of you. We are using a inverting amplifier. बच्चे डायग्राम ड्रॉ कर लो। All of you draw your diagram. Milan, Satveer, हो गया सर। are you audible to me? सुन रहे हो मेरे को? Yes sir. यस सर। डायग्राम ड्रॉ हो गई है सबकी? यस सर। यस सर। चलो इसके आगे अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। वी हैव टू अप्लाई द KCL एट दिस पॉइंट। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज I1 शुड बी इक्वल टू द IB प्लस IF। इसके आगे हम चलेंगे।
So you should have to apply the KCL at node V2. In that case, I1 it should be equal to IB plus IF. Okay, so in that case, IB is the input bias current, so it should be, it is very small and it should be now negligible. That I1 it should be equal to the value of IF. Okay, so now what is the value of IC at the capacitor VC? मान लो IC है जो आपकी, उस पे करंट क्या होगा? That is a C into DVC divided by DT. यही वैल्यू होती है IC according to this one. Yes, sir. What is the value of IC? CdVC upon DT. IC वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू V in minus V2 divide by R1 equal to CF D by DT. VC क्या है वैल्यू? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. So that is the value V2 V0. Yes. देखो ये डेरिवेशन यहां तक पता लगी बच्चे? यस सर. यस सर. और इस केस में अगर V1 एंड V2 इज नाउ वेरी स्मॉल, तो A इज वेरी लार्ज, तो आपकी V2 की वैल्यू को आप 0 अज्यूम कर लो, तो आपकी डेरिवेशन क्या आएगी आगे? फिर लाइट गई लगता है. मनमर्जी हो गया है. लाइट कट गई फिर से. ब्रेक हुआ है. लाइट कट गई है सर, लेफ्ट कर दी. हो गया बच्चे? इंटेग्रल लोगे तो यू शुड हैव टू वैल्यू 0 to 2 0 to t विद द dt आ जाएगा यहाँ पे. सर उसको वापस से रिपीट करना है. 5 मिनट तक आपकी वीडियो गायब हो गई थी. अच्छा, एक IC की वैल्यू यहाँ तक क्लियर होगी. IC की वैल्यू C by DVC by dt होती है, तो IC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. IC इट शुड बी इक्वल टू ईयर. आ गए सभी की नहीं लाइन पे? यस सर. आगे ना, तो IC की वैल्यू क्या है? दैट इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज द V in minus V2 डिवाइड बाय R1. CF हो गया, CF हो गया. VC की वैल्यू क्या है? V2 minus V0. V1 और V2 आपके नोड पे एक तरह का अगर गेन बहुत लार्ज है तो V1 को हम 0 ले सकते हैं, तो हमने V2 को 0 ले लिया, यहाँ भी V2 को 0 ले लिया और ये इक्वेशन आ गई. अब इंटेग्रल हमने आउटपुट करना था, हमने दोनों साइड को इंटेग्रल ले लिया. ओके, तो इंटेग्रल लेंगे. इंटेग्रल लेने के बाद हमारा जो आंसर निकला, इट शुड बी इक्वल टू ईयर CF इक्वल टू ईयर CF माइनस V0. यही आएगा इंटेग्रल आपका. चेक करो बच्चे. तो इस केस में अब आप वैल्यू निकालो V0 की. यहां पे तो यही रहा 0 by t V in by R1 into dt. You have to calculate the value of V0. V0 should be equal to here -1 upon R1 CF. R1 CF, that is the integral of 0 to 2 V in divided by dt. हमने यही सॉल्व किया था कि आउटपुट वोल्टेज जो हमारी होगी that is the integral of your input voltage. तो यही हमारा इंटीग्रेशन सर्किट था, वही हमने प्रूव कर लिया. Check out this equation. The output voltage is directly proportional to the negative integral of the input voltage and inversely proportional to the time constant, that is the value R1 and CF. Clear my point up to this one? Yes sir. So for example, यहां तक हो गया बच्चे?
यस सर। यस सर। अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, अगर हमारी इनपुट जो है वो साइन वेव है, सो द आउटपुट विल बी नाउ कोसाइन वेव बिकॉज दैट इज द नेगेटिव। और इफ इनपुट इज नाउ स्क्वायर वेव देन द आउटपुट शुड बी नाउ ट्रायंगुलर वेव। मींस अगर मेरी इनपुट जो है इस केस में इंटेग्रल में अगर आपकी स्क्वायर वेव आ रही है तो इसकी जो आउटपुट वेव आएगी इट शुड बी अ ट्रायंगुलर डाउन बिकॉज नेगेटिव। ये ट्रायंगुलर वेव आएगी, दैट इज योर इनपुट एंड दैट इज योर आउटपुट। क्लियर माय पॉइंट? अगर साइन वेव आ रही है तो उसकी नेगेटिव पे कोसाइन आएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कोसाइन। क्लियर माय पॉइंट? दिस वाज दैट इज द इंटीग्रेटर। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल थी यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की भी एक डायग्राम है। इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द एरर वोल्टेज एट द आउटपुट। ए रेजिस्टेंस आरएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस द फीडबैक रजिस्टर। मींस अगर हमने कुछ वोल्टेज एरर को रिड्यूस भी करना है तो यू हैव यूज ए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या होगा, जहां पे आपने फीडबैक रजिस्टर की जगह फीडबैक कैपेसिटर लिया है तो उसके पैरेलल में ही आपने फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो टू हैव टू रिड्यूस द एरर वोल्टेज। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो उसकी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दैट इज एफ बी, इट शुड बी इक्वल टू द 1/2 पाई R1 CF। R1 CF। That is the equation of the frequency integrator response or the practical integrator. That is using one of that. You have to calculate the value of the practical integrator. Connect the feedback resistor is parallel with your feedback capacitor value. So that is your practical integrator. So that is the full concept of the integrator. मेरे पास जो पीपीटी जो यहाँ पे हैंड राइटर पे शो हो रही है, ये सारी पीपीटी मैं आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा। अगर जिनके पास बुक्स भी अवेलेबल है, दैट इज इजी वन टू ड्रॉ योर सर्किट डायग्राम एंड द डेरिवेशन। इसके लिए बहुत जरूरी है बच्चे, मैंने पहले भी बताया है, तो इसकी जितनी भी डेरिवेशन है दैट इज नेसेसरी टू हैंडल योर बुक फॉर दैट। रमाकांत गायकवाड़। ओके, तो इसके लिए अब ये भी इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटर फॉर दिस वन। नाउ आई हैव टू गिव द वन पोल फॉर रिगार्डिंग फॉर दिस वन। कुछ पोल दे रहा हूं, पोल को सोल्व करो। करो बच्चे सोल्व।
हो गया बच्चे? नेक्स्ट नेक्स्ट बोल करो। हो गया सर। ओके ओके, गिव द नेक्स्ट बॉय, विल गिव यू नेक्स्ट बॉल। ओके सर। चलो हेलो सर। वेट 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 सेकंड, एक सेकंड बच्चे। हेलो सर। हेलो सर। अरे सर बोले हैं ना रुकने के लिए, रुक जाओ ना 5 मिनट। मान जाओ 2 मिनट। हेलो, पढ़ो। हाँ जी बच्चे बताओ। सर यस सर। थर्ड का हमको क्या होगा? थर्ड का आंसर एवरेजिंग था मेरे हिसाब से। सर लीनियर वाला। सर सर लीनियर सर। लीनियर लीनियर वाला सर। नहीं, इसका तो लीनियर ही आएगा, इसका तो लीनियर आएगा जो मैंने अभी बताया। ये तो ओके सर। फोर्थ है ना, थर्ड का यस पूछ रहा सर। था। अच्छा अच्छा ओके सर। चलो हो गया। हाँ सर। यस सर। यस सर। ओहो, आगे चले अब तो पीछे चले? सर आगे सर। और पूछना है सर। ये इंटीग्रेटर देखो, पीपीटी में भी सेम वैसा ही दिया हुआ है, आपको पीपीटी में भी आसान रहेगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। होगी, शेयर चेक करो यार, शेयर होगा। नेट स्लो है आगे सर। आशीष तुम्हारा। आगे सर। अब डिफरेंशिएटर से पहले ना यहाँ पे एक ना पीपीटी से ही हम करेंगे लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर। डिफरेंशिएटर बाद में करते हैं। मैं पीपीटी खोल दूं यहाँ पे, कहाँ पे आ रहा लॉग वाला?
हेलो एवरीवन, Yes, sir. यस सर। ये पीपीटी पे शो हो गया बच्चे, लॉग एम्पलीफायर। Yes. Yes, sir. यस सर हो गया। यस सर। अब ये देखो, चेक करो पीपीटी से, मैं हम वन बाय वन करके शेयर करते हैं। लॉग एम्पलीफायर, लॉग एम्पलीफायर क्या होता है बच्चे, चेक करो एक बार। एंटी-लॉग कंप्यूटेशन में रिक्वायर्ड फंक्शन सच एज log x, nx, sin hx. These can be performed continuously with log amplifiers. Log amplifiers can be also be used to compress the dynamic range of the signal. The fundamental log amplifier circuit is shown in figure below, where a grounded base transistor is placed in the feedback path. ये log amplifier का सर्किट है जिसमें हम इन्वर्टिंग ऑप-एम्प यूज कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव के साथ हम VI लगा रहे हैं। तो विद वी आर यूजिंग ए ग्राउंडेड बेस, जो बेस है उसका ट्रांजिस्टर का, उसको ग्राउंड किया हुआ है, इज प्लेस इन द फीडबैक पाथ। सो दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर फंडामेंटल लॉग एम्पलीफायर। ओके बच्चे, सो अकॉर्डिंग टू द करंट आई, ये सीधा ही इस पे डेरिवेशन दी गई है, IE इट शुड बी इक्वल टू IS इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE नीटा into VT minus 1 with the whole of exponential component. IS should be known as your reverse saturation current, approximate value up to your 10 raised to power minus 13 ampere. Neta is value 1, VT is your KT by Q. K is the Boltzmann constant, T is absolute temperature, and IE should be S is equal to Q VBE. Means VBE become QVB and K eta E से VT की वैल्यू जो हमने की है वो KT by Q से इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। So here IE it should be equal to ये IC, इसने किया यहाँ पे कि IE की वैल्यू है वो IC के इक्वल आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग IE is equal to IC. So IC डिवाइड बाय IS, देखो इस पे IE is equal to IC डिवाइड बाय IS, ये वाला हो गया, प्लस यहाँ पे चला गया 1, E is equal to एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट 1, so IC डिवाइड बाय IS, it should be IC is very greater than value 1, तो इसको इसने रिप्लेस कर दिया ओनली विद द वैल्यू IC डिवाइड बाय IS1। ओके, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट को अगर आप log लोगे तो ln की वैल्यू आ जाती है मैथमेटिकल इक्वेशंस में। हेलो एवरीवन, Yes, sir. दोनों तरफ log लिया तो एक्सपोनेंशियल log e की पावर 1 आ जाती है, तो ln वैल्यू IC डिवाइड बाय IS आ गई, QVBE डिवाइड बाय KT आ गया, VBE की वैल्यू इसने यहां से फाइंड आउट की, तो KT डिवाइड बाय Q ln IC डिवाइड बाय ICS आ गया। फ्रॉम द सर्किट V0 it should be equal to your minus VBE। ओके, V और की वैल्यू है वो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज माइनस VBE के बराबर हो जाएगी, बिकॉज दैट इज योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसलिए माइनस VBE वो ले रहा है। तो VB की वैल्यू ये निकाली है उसने ये कैलकुलेट कर दिया, V0 की वैल्यू दिस वन। सो IC should be equal to the output voltage thus proportional to the value of the logarithmic value of the input। मींस इस केस में क्या हो गया, जो आउटपुट वोल्टेज है आपकी वो किसके इक्वल हो गया, log of the value of the Vin। by proper scaling this is a value। the above log amplifier circuit has one problem, the emitter saturation current IS जो आप ले रहे थे is varies from transistor to transistor with the temperature। this is eliminated by the circuit shown in figure below। मींस ऊपर वाला जो हमने अभी डिस्कशन किया है IS, वो उसकी में ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट ट्रांजिस्टर। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने एक और सर्किट इसमें अरेंज किया। वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ योर सम ऑप-एम्प लॉग एम्पलीफायर विद सैचुरेशन करंट एंड द टेम्परेचर कंपनसेशन। देखो यहाँ पे इसने क्या वैल्यू दी है, दो नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प ले लिए, दो ग्राउंड लोडेड वाले ले लिए,
और उस ओपम के साथ कनेक्ट करके उसने फीडबैक, ये एक कंप्लीट सर्किट बना दिया उसने उसने और अज्यूम किया लेट IS1 इक्वल टू IS2, उसने बराबर ले लिया कि दोनों की वैल्यू सेम है। ऊपर हमने V1 की वैल्यू यहाँ पे निकाली। V1 की वैल्यू क्या है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये निकाली हमने KT/Q ln BI/RS। ये वैल्यू V1 की होगी, ये वैल्यू V2 की होगी। तो V0 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? V1 माइनस V2, V2 माइनस V2, दोनों को माइनस किया तो V इन V REF आ गया, क्योंकि एक इनपुट वोल्टेज दिया, एक रेफरेंस वोल्टेज दिया। देखो यहां तक कुछ पता लग रहा है कि नहीं? अभी कल मैं बोली जा रहा हूं, लग रहा है सर। सर क्या लग रहा ये है? पता है सर। क्या लग रहा बता बताओ। पता है सर। की वैल्यू मिलन, सही बोल रहे मिलन, हैं, तीनों आपस में सेम है। हेलो सर। मिलन। हाँ जी सर। ये बच्चे कुछ पता लग रहा है कि नहीं? सर लग रहा है। कैसे पता लग रहा तो वही है? B1 और B2 का वैल्यू निकाल के वहां पे आपने पुट किया है। ये हमने सीधी डेरिवेशन निकाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने सिंपल लॉग सर्किट की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू अब यहाँ पे V1 और V2 पे उसका डिफरेंस हमारी आउटपुट वोल्टेज के पास ले रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यू आ गई है। द रेफरेंस वोल्टेज लेवल इज सेट नाउ विद द सिंगल एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इट इज डिपेंडेंस अपॉन द डिवाइस एंड द टेम्परेचर हैज बीन रिमूव्ड। the voltage V naught is still dependent upon the temperature। तो आपकी जो वोल्टेज आ गई नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर गेन, इट इज 1 प्लस R2 बाई RTC। तो ये कैलकुलेट करके आपका लोगिथम एम्पलीफायर की जो वैल्यू निकली है वो वाली सर्किट कंपनसेटरी से वैल्यू निकली है। इतना ही कर लोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए लॉग एम्पलीफायर। इसके बाद उसने कुछ एक सर्किट डायग्राम और बना दी है लॉग की। द सर्किट ऑफ द अबव फिगर रिक्वायर्स 4 op amps, so same output with an inversion can be obtained by the circuit show। मींस ऊपर वाला सर्किट था उसमें हम 4 op amp यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने उसने क्या किया, 2 op amp यूज करके ही वो वैल्यू फाइंडर निकाल दिया। that in the case of your inverting amplifier, that is the case of the non inverting amplifier। तो मींस ऊपर वाली जो डायग्राम थी आपकी बेसिकली दैट इज यूजिंग द 4 op amps 1 2 3 4। तो नीचे वाली जो डायग्राम है सेम डेरिवेशन वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, तो बाय यूजिंग द 2 op amps। देखो इसको डायग्राम को एक बार, इस पीपीटी को चेक करो एक बार, जो मैं यहाँ पे डायग्राम को देख लो। ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा मैं। और पोल करो एक और।
हेलो सर। हो गया आंसर इसका? इसका आंसर क्या था सही? मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया इसका। स्केलिंग फैक्टर आंसर। स्केलिंग फैक्टर आंसर सही है इसका। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉल करो। चलो, डन सर, पोल डन। ओके ओके, आंसर इज नाउ ओपन लूप गेन। यस सर। Okay, now सर I am starting the next one, that is your anti-log amplifier. उसका सर्किट देख लो एंटी-लॉग एम्पलीफायर का। I am audible to all of you. It Yes, should sir. be using the Yes, sir. inverting amplifier with both of the grounded transistor is the connectivity with each other and output is connectivity to one of the inverting amplifier. तो यहाँ पे जो VA की वैल्यू उसने निकाली है, that is the previous one जो हमने वैल्यू निकाली थी वही वाली आ जाएगी VA वाली। VBE2 पे की वैल्यू जो आएगी according to the value, that is a K2 because that is the inverting amplifier, that is a non-inverting amplifier. अब VB की वैल्यू जो हमारी थर्ड निकलेगी VB point at this one due to the value of the this transistor, that is VI RTC according to the voltage dividing rule, VR1 RTC जो grounded resistance है with R2 by plus RTC। तो ये इक्वेशन 3 आ गई आपकी।
अब इसने यहाँ पे क्या निकाला, वैल्यू ऑफ VA। VA की वैल्यू क्या है यहाँ पे, VBE2 प्लस VB, ये वैल्यू को ऐड कर दिया और VB की वैल्यू क्या निकली, VA प्लस VBE2। अब इन दोनों की वैल्यू को उसने ऐड कर दिया, VB इज इक्वल टू VA प्लस VBE2। दोनों को सोल्व आउट करके इसने जो वैल्यू निकाली है माइनस K/Q ln V नॉट बाई VREF, बिकॉज R11 IS इज नाउ कैंसल आउट विद ईच अदर। ओके, सो नाउ VB की वैल्यू अब यहाँ पे पुट अप कर दी, VRTC डिवाइड बाय 2RTC, ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब दोनों को इक्वल रेशियो से जब सॉल्व करोगे तो लास्ट पे V नॉट की वैल्यू निकलेगी वोल्टेज रेफरेंस E रेज़ टू पावर माइनस दिस वन, दैट इज द फाइनलाइज्ड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आउटपुट विद द एंटी लॉग एम्पलीफायर। ये वैल्यूज वही हैं जो हमने प्रीवियस निकाली हुई थी, उसी को उसने आगे सॉल्यूशन करके अकॉर्डिंग टू चेंजेस विद द डायग्राम। ये डायग्राम में कुछ चेंजेस है कि दो ऑप-एम्प यूज किए जा रहे हैं विद यूजिंग द टू ग्राउंडेड ट्रांजिस्टर, वी आर यूजिंग इंटरकनेक्ट विद ईच अदर विद द थर्ड सोर्स एंड टू कनेक्टिविटी विद द रेजिस्टेंस RTC। So yeah, that is the concept of the anti-log amplifier. Clear my point? ये डेरिवेशन सारी ही इस पे दी गई है, जो एक डेरिवेशन हमने की है उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी डेरिवेशन उस वोल्टेज पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं आपकी। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर। क्लियर माय पॉइंट? Next, I have to elaborate the differentiator in your board with this diagram. Differentiator करते हैं आज। I am audible to all of you. आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक करो बच्चे, यहाँ पे डिफरेंशिएटर। ये इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डिफरेंशिएटर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, so basically you have to draw the all of them this diagram। इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। ये बच्चे डायग्राम ड्रॉ कर लो। दैट इज द डायग्राम ऑफ योर डिफरेंशिएटर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर।
डिफरेंशिएटर की डायग्राम ड्रा कर लो। That is the current IC follow with the current IF, that is the feedback current, that is the RF, RL, V naught, IB, approximate equal to here 0. हो गई ड्राफ्ट बच्चे डायग्राम ये हो रही है? हेलो हेलो सर, हो रही है सर। हो गई कर सर। लो कर लो, ले लो 2-3 मिनट ले लो, ड्रा कर लो जल्दी कि नहीं। मिलन यस सर। हो गई ड्रा? सर हो रही है। करो करो। हो गई सर। कर लो कर लो। हो गई सर। हो गई है सबकी? यस 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 सर। सर। हो गई सर। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएटर बच्चे। इंटीग्रेटर में हमने क्या किया था? बेसिकली यू हैव टू चेंज द फीडबैक रेजिस्टर विद द फीडबैक कैपेसिटर CF। अब डिफरेंशिएटर में क्या है? डिफरेंशिएटर की डेफिनेशन जो कह रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएटर डेफिनेशन दैट द आउटपुट वोल्टेज इज द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। हमने इंटीग्रेटर में कैसे क्या डिफाइन किया था? जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इंटेग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज होगी, जो हमने डेरिवेशन प्रूव की थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी स्क्वायर वेव से हमारी ट्रायंगुलर वेव आउटपुट आई और साइन वेव से हमारी क्या आई? और साइन वेव नेगेटिव। ओके, सो दैट इज द इनवर्स कांसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएटर। अब इस केस में क्या है? उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस R1 था इट शुड बी रिप्लेस विद द कैपेसिटर C1। ओके, अब यू हैव टू अप्लाई द KCL एट पॉइंट V2। अगर आप V2 पे KCL अप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? यहां से करंट IC आ रहा है, IB एंड IF। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट? निशिकांत क्या सर एक बार यस सर। बताओ, इस पे KCL पे V2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? निशिकांत तुम बताओ। सर बता रहे हैं। Apply the KCL at the point V2 voltage level 2. So it should be equal to the IC equal to the value of IB plus IF. I have to erase this diagram and show the derivation according to this one. Okay? बना लिया डायग्राम पक्का सबने? यस सर। So now apply the KCL at it should be equal to the IB plus IF. This should be equal to 0 because of the input bias current. It should be now 0. At that case, IC should be equal to here IF. Okay. So what is the value of IC? IC should be equal to here C1 D by dt. What is the value? V1 V in inverting पे क्या करेक्टेड था? V in minus V2 and IF is now output voltage. Output voltage क्या है आपकी बात की? V2 minus V0 divide by here
आर एफ। देखो ये वैल्यू समझ लगी कैसे आई हमारी। पता लगा बच्चे सबको? सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन हमने V2 की वैल्यू क्या ली थी? V2 की वैल्यू हमने 0 ली थी। अकॉर्डिंग टू V1 approximate equal to V2 approximate equal to that is a 0. So in that case C1 d by dt V in minus V naught by RF. So if you calculate the value of V naught here, V naught it should be equal to minus RF C1 d V in by dt. देखो ये वैल्यू आ गई है सबको, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे? यस सर। चेक आउट दिस वैल्यू। यस सर। क्लियर? Yes, sir. So now output voltage V naught that is equal to the feedback resistance and capacitance C1 times the negative rate of change of the input voltage with time. So differentiator perform the reverse of the integrated function because a cosine wave input will produce a sine wave output or triangular wave produce a square wave output. मीन्स जो आपका डिफरेंशिएटर है वो इंटीग्रेटर से डिफरेंस बिहेव करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस वन डिफरेंशिएटर में क्या आएगा, जो अगर आप साइन वेव इनपुट दोगे तो वो पॉजिटिव एंड पे कोसाइन वेव आएगी, और अगर आप स्क्वायर वेव दोगे देन यू हैव टू रिट्रीव द स्पाइक्स एट द आउटपुट। दैट इज द सर्किट ऑफ द इंटीग्रेटर एंड द डिफरेंशिएटर, डिफरेंस बिटवीन देम। So means इसके पास जो हमारी डायग्राम्स आएंगी, that is the change of the diagram of this one. Means अगर हमारी यहाँ पे साइन वेव की वैल्यू आएगी इनपुट, जो हमारी आउटपुट आएगी that is the negative of your cosine wave। तो साइन वेव आएगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग। अगर सिमिलरली आपकी यहां पे स्क्वायर वेव आएगी, spikes at the output, that is the output, that is your input, and that is your output. So that is the resultant of your differentiator. Similarly इसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर भी आ जाता है। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में क्या आएगा अभी यहाँ पे चेंजेस, कि अगर आपका रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस आपका फीडबैक रेजिस्टेंस RF तो ले ही रहे हो, तो R1 की जगह आपका C1 कैपेसिटर भी सीरीज में लग जाएगा। R1 रेजिस्टेंस मींस उसकी डायग्राम बता देता हूं, एक बार होल्ड करो। ये पता लग गया बच्चे, व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट फॉर द इन द केस ऑफ योर डिफरेंशिएटर। साइन वेव that is the resultant of the cosine wave if you show with your square wave and you have to get the spikes at the output। ये हम दोनों ही इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर यूज करते हैं, तो उसके सर्किट डायग्राम में क्या चेंजेस होगी। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर मींस इफ यू आर यूजिंग द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहां पे आपने कैपेसिटर लगाया था तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी लग जाएगी, और यहां पे आपने जब रेजिस्टेंस लगाया तो उसके साथ कैपेसिटेंस भी पैरेलल में लग जाएगी। बाकी सारा सर्किट सेम रहेगा। दैट इज CF इज नाउ RF, दैट इज C1 दैट इज नाउ R1। दैट इज द चेंज ऑफ दिस वैल्यू।
ये चेंज आएगा आपका प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में, और जो आपकी V नॉट आएगी इट शुड बी इक्वल टू योर माइनस आर एफ C1 dV इन बाय dt। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपकी, जो हमने वैल्यू डेरिवेटिव से फाइंड आउट की है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द सिमिलर, इसका फ्रीक्वेंसी तो अभी इसकी डायग्राम में दिया हुआ है, तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी इसका कवर कर लेंगे। सो दैट इज द फाइनलाइज्ड वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएटर विद द यूजिंग ऑफ द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएटर, एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर एंड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूं अभी ग्रुप में। और एक बात, असाइनमेंट बनाई है अभी सबने के किसी ने कि नहीं अभी? सर स्टार्ट कर दिए सर सेक्शन ने। एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है सर स्टार्ट कर दोनों दिए दो असाइनमेंट बना लो, पहली और दूसरी दोनों इकट्ठी भेज दो मेरे को। ओके सर। हैं? ओके पहली सर। और ओके पहली सर। दूसरी असाइनमेंट इकट्ठी बना के मेरे को कल परसों तक भेज दो बस। ओके सर। सर कल परसों सर 2 दिन में कैसे हो? और कितने दिन चाहिए आपको? कर क्या सर रहे हो इतने दिन? फ्राइडे तक का दे दीजिए ना। ओहो इतने दिन से क्या कर रहे हो? असाइनमेंट तो कब की बोली हुई है कि फुर्सत से देख के बनाओ। सर वो क्या वो? ओके सर बन जाएगा सर। उससे थोड़ा नवरात्रि चल रहा था। क्या चल रहे थे? असाइनमेंट बना के दो, पहली दो पहले जल्दी बना के फिर दूसरी दे दो। ओके सर। ये एक पीडीएफ आपको भेजा, चेक करो। मिल गया सबको? नो सर अच्छा, अभी नहीं है। एक ट्यूट लगाएंगे हम 2-2:30 बजे। मैं मैसेज कर दूंगा पहले, वो मोबाइल पे ही हम ट्यूट लेंगे, कोई भी डिस्कशन वगैरह उसमें करेंगे आधा पौना घंटा, ठीक है? ओके सर। यू विल अटेंड ऑल द इन देयर ट्यूट। मिल गया? पीडीएफ मिल गया? यस सर। यस सर मिल गई। और क्या करनी है डिस्कशन बताओ। असाइनमेंट बनाओ टाइम से मेरे को भेजो, आज कल में पहले बना के विद योर नेम, किसी के मिस ना हो असाइनमेंट आपकी। और मार्क्स पता लग गया सबको आपके एलआईसी के? नो सर नो सर नो सर। नो सर। क्यों, आपकी मेंटर मीटिंग नहीं हुई अभी? नो सर। नो कौन सर है नहीं मेंटर हुई आपका? है मेंटर कौन है आपका? सर गुनीत मैम। गुनीत मैम। चलो आज पता लग जाएंगे एलआईसी के मार्क्स आपको। बाकी इसको ध्यान से पढ़ो। अभी माहौल अच्छा ही है, शायद ऑनलाइन ही हो सब कुछ, जैसे भी हो आपके लिए बेनिफिट ही है। सर हमारे यहाँ बहुत खराब है सर। माहौल खराब है? यस सर, बिहार में बहुत ज्यादा। सब जगह ही बहुत ज्यादा है। 2,73,000 केस आ गए हैं। यस सर। लो सर मैं लीव कर रहा हूँ सर, मेरा फोन बहुत हीट हो चुका है। कौन कौन है? दुर्गा कुमार सर। दुर्गा यार, जल्दी करवा देना था हीट, इतनी लेट क्यों हीट करवाया? सर हीट हो गया बहुत, फोन हीट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। ध्यान से कर दो यार, लॉग आउट कर दो। टाइम हो गया 11:30 हो गया, 2 घंटे हो गया, कोई बात नहीं, अब लीव कर दो बच्चे। ओके सर, थैंक यू। प्रॉब्लम लग रही है? ओके बच्चे, थैंक यू सर। और निशिका तुम्हारा तो नहीं फोन हीट हो गया? नो सर मेरा नहीं होता है। मिलन सत्यवीर नहीं होता? वेरी गुड, गुड बैकअप। मिलन, सत्यवीर, करण, ज्योतिष्णा, Yes, sir. हरकिरत कौर, ऑल ऑफ यू अटेंड योर ट्यूट। जो हमने लेक्चर में किया है वो डिस्कशन करेंगे। मैंने लेक्चर में समझना है, ये जो मैंने करवाया है इसको पढ़ लो। किसी को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोलना है तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ ओके सर। ओके सर। ये पीडीएफ जो मैंने भेजा है, अगर बुक भी आपके पास तो सेम एज इट इज वैसे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें से।
जो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं केवल एक दो पैरामीटर चेंज करते हैं, फिर वही केवीएल केसीएल लगा के उसको डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, और अब कुछ नहीं कर रहे शुरू से, एक ही कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। वही ओपन में वही इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। क्लियर माय पॉइंट? यस सर, यस सर। इसको पढ़ो, मैं लिंक ऐसे मैंने फ्री है, मैं कुछ देर पहले आपको लिंक भेज दूंगा। देन आई हैव टू अटेंड योर ट्यूट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके Okay. सर। यस सर। चलो बच्चे, आज के लिए ओके सर, ओके सर। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।